Mohawk Jewelers, timeless jewelry for generations. Welcome to Glam and Shine with Rashmi P. My guest today is president of one of the most prestigious awards, Gujarati Iconic Film Awards, GIFA. जिन्हें कौन नहीं जानता? You're welcome, Hetal Thakkar. આજની રાત છે ગ્લેમર અને એન્ટરટેનમેન્ટથી ભરપૂર, જેમાં હિતુ કનોડિયા આપશે ઇન્ડસ્ટ્રીના સુપરસ્ટાર્સને ટ્રિબ્યુટ. હાય હાય, શું વાત કરો છો? એ પાદરની ઓંબલી હેઠે ભાવિની બેન અને શૌનકની હશે ચટપટી વાતો. આ તો યાર એવું થયું કે પિઝાનો ઓર્ડર આપ્યો અને પ્લેટમાં ભાખરી આવે. ભૂમિ ત્રિવેદીનું સિઝલિંગ પરફોર્મન્સ કરશે ઓડિયન્સ પર જાદુ. કિશોર કાકા અને આરજે હર્ષિલ કરશે પેલી વાતો. અને લહેંગા વચ્ચેનું સુખ તને ક્યારે ખબર પડશે જ્યારે તને ખંજવાળ આવશે. બોલિવૂડના દિગ્ગજ મ્યુઝિક ડિરેક્ટર આનંદજીભાઈનું થશે સન્માન. તો થઈ જાવ તૈયાર આજની મજેદાર સાંજ માટે. ઝી 24 કલાક પર 18 અને 19 જાન્યુઆરીએ સાંજે 7:55 અવોર્ડ્સની સૌથી મોટી સાંજ આપનું સ્વાગત કરે છે. રેડ કાર્પેટ પર ચમકતા સિતારાઓની સાથે અવનવા દિગ્દર્શકો અને સંગીતના સુપરસ્ટાર્સ સાથે માણો ડાન્સના મહારથીઓને કલાકારોના સન્માન સાથે ભારતના સૌથી મોટા ગુજરાતી ફિલ્મ એવોર્ડ સમારંભમાં. આજની રાત છે ગ્લેમર અને એન્ટરટેનમેન્ટથી ભરપૂર, જેમાં હિતુ કનોડિયા આપશે ઇન્ડસ્ટ્રીના સુપરસ્ટાર્સને ટ્રિબ્યુટ. હાય હાય, શું વાત કરો છો? એ પાદરની ઓંબલી હેઠે ભાવિની બેન અને શૌનકની હશે ચટપટી વાતો. આ તો યાર એવું થયું કે પિઝાનો ઓર્ડર આપ્યો અને પ્લેટમાં ભાખરી આવે. ભૂમિ ત્રિવેદીનું સિઝલિંગ પરફોર્મન્સ કરશે ઓડિયન્સ પર જાદુ. કિશોર કાકા અને આરજે હર્ષિલ કરશે પેલી વાતો. અને લહેંગા વચ્ચેનું સુખ તને ક્યારે ખબર પડશે જ્યારે તને ખંજવાળ આવશે. બોલિવૂડના દિગ્ગજ મ્યુઝિક ડિરેક્ટર કલ્યાણજી આનંદજીવાળા આનંદજીભાઈનું થશે સન્માન. તો થઈ જાવ તૈયાર આજની મજેદાર સાંજ માટે. An award goes to જે હશે સુંદર, રંગીન અને સર્વશ્રેષ્ઠ. નેસ્લે મંચનટ્સ જીફા 2019માં આપનું સ્વાગત છે. Welcome to the show, Hetal ji. How are you? I'm fine, thank you very much. Thanks a lot. Thank you so much कि आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला and I would like to thank you on behalf of all of our viewers from USA and Canada जो हमारा शो देख रहे हैं. Thank you so much again कि आपने शो के लिए वक्त निकाला और सब कुछ शेयर करने के लिए वक्त निकाला कि आज ये जीफा हमारे इंडस्ट्री में है, तो हाउ इज इट एंड हाउ इट्स हैपनिंग. So first of all, it is pleasure always to be with you guys. हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके साथ जुड़े हुए. आपको गुजराती आती है? रश्मि, मैं आपसे एक सवाल पहले मैं चाहती थी आपको केम. अच्छा, समझ आती है? समझ आती है. तो સૌથી પહેલા કેમ છો? मैं थोड़ा शुरू करता हूँ गुजराती में, क्योंकि गुजराती हूँ तो ગુજરાતીમાં હોવાનો આ એક જે છે ને એ અલગ વાત અને અલગ મિજાજ છે કે ભાઈ ગુજરાતી ભાષા જે છે ને એની મજા છે. અને આ અમારો ગુજરાતી ભાષા માટેનો, ગુજરાતી કલ્ચર માટેનો પ્રેમ છે. ये हमारा प्यार है गुजराती भाषा के लिए और कल्चर के लिए कि हमने जीफा के बारे में सोचा और जीफा की शुरुआत की है. तो मैं कोशिश करूंगा बीच में आपके साथ हिंदी में और इंग्लिश में भी बात करूंगा, लेकिन गुजराती पक्का आएगा क्योंकि हम गुजराती है तो आई वांट कि गुजराती बीच में आए. बिल्कुल, हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं जो गुजराती हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है और ऑफ कोर्स आप प्लीज थोड़ा बहुत बोलिए. समझ तो हमें भी आती बिकॉज हमारा भी बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें गुजराती हैं और वो भी हमारा शो देखते हैं. उन्हें बहुत अच्छा लगेगा जब आप बोलेंगे. क्या बात. तो हेतल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शुरू से ही आपका इंडस्ट्री में लाइक फिल्म लाइन की तरफ इंटरेस्ट था या कैसे आपका हुआ रुझान इस तरफ? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मेरे मित्र अभी हमारे साथ लाइव में भी जुड़े हुए हैं, वो आज अभी लाइव भी देख रहे हैं. अरविंद वेगड़ा
जो भाई भाई के नाम से फेमस है, ही इज अ वेरी फेमस सिंगर, अरविंद वेगड़ा। भाई भाई उनका भला मोरी रामा सॉन्ग था। मैं और अरविंद 93 में कॉलेज में साथ में थे। जी। तो उसके बाद हम लोगों का कोई मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन 2015 में एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी मुलाकात हुई और हम लोग वापस मिले। तब मुझे पता चला कि ही इज नाउ सिंगर, और उसे पता चला कि आई एम नाउ ऑडिटर, आई एम रनिंग माई ओन सर्टिफिकेशन बॉडी एंड आई एम ऑल्सो रनिंग माई ओन सर्टेन बिजनेस अवार्ड दैट इज कॉल्ड क्वालिटी मार्क अवार्ड्स। तो आई हैव ऑलरेडी इनवाइटेड हिम टू अटेंड वन क्वालिटी मार्क अवार्ड 2015, जिसमें आने के बाद उसने बोला कि यार ये बहुत अच्छा हो रहा है एंड लेट अस डू समथिंग फॉर गुजराती सिनेमा। गुजराती मूवीज अभी ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी मूवीज आ रही है, तो ये एक वैक्यूम है और हमें कुछ इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और मेरा ऐसा स्किल था, वो उसको पता था कि मैनेजमेंट इसका बहुत बढ़िया था, शो बहुत बढ़िया मैनेज हुआ था। तो मैंने बोला देखो यार मुझे फिल्म का ज्यादा पता नहीं है, लेकिन शो अच्छे से होगा। उसने बोला फिल्म के बारे में मुझे पता है, बाकी सब वो टेक्निकलिटी मैं देख लूंगा। तो 2015 में ये हमने तय किया कि हमें कुछ ना कुछ गुजराती फिल्म्स के लिए करना है, गुजराती लैंग्वेज के लिए करना है। और उससे पहले आपने देखा होगा कि आईफा, फिल्म फेयर और जितने भी बॉलीवुड के अवार्ड्स है वो सब चलते हैं, सब देखते हैं, सब उसके लिए भी दीवाने होते हैं। तो हमने सोचा गुजराती कल्चर को बढ़ावा देना है तो गुजराती फिल्मों के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए। और यही सोच के 2016 का ये फर्स्ट एडिशन जीफा हमने शुरू किया। इसका नाम रखने से लेकर शो तक बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मेहनत की है हमने। 1 साल तक इसके लिए पूरा रिसर्च किया कि जीफा कैसे रहेगा, उसका मॉडल क्या रहेगा, उसका टेन्योर क्या रहेगा, उसका नाम क्या। जीफा नाम इटसेल्फ, जीफा नाम में एक बहुत बड़ी बात है कि जिसमें गुजराती पने की बात आ रही है, गुजराती की बात आ रही है, कुछ आइकॉनिक चीज की भी बात आ रही है। तो ये सारी चीजें मिला के गुजराती आइकॉनिक फिल्म अवार्ड जीफा 2016 जो फर्स्ट हुआ, वो जीफा का वहां से जन्म हुआ। फैंटास्टिक। मैं खुद भी कहना चाहती थी कि जो आपने नाम से किया, पिक किया, बहुत बढ़िया, इट्स फैंटास्टिक। एंड अरविंद जी, ही इज माय फेवरेट टू। बहुत बढ़िया, जो उन्होंने हमारे शो में एंट्री दी थी, अभी तक हमारे व्यूअर्स याद करते हैं कि व्हाट अ स्टाइल। हाँ, आप यहाँ पे जो बीच में स्क्रीन चल रही है उसमें भी देखेंगे तो ब्लैक कैप में अरविंद का एंट्री है एंड ही इज अ रॉक स्टार ऑफ गुजरात। तो वो तो हमेशा छाए रहते हैं बिकॉज ही इज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। बहुत बढ़िया, ही इज अ वंडरफुल पर्सन। मैं उन्हें बहुत एडमायर करती हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। एंड आई एम ग्लैड कि आप दोनों की बॉन्डिंग इज ग्रेट और आपने जो प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है, इट्स फैंटास्टिक। क्योंकि मुझे तो इधर जी लगता है कि जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, बिहाइंड द सीन, ऑन स्क्रीन बहुत मेहनत करते हैं और उन्हें एक रिकॉग्नाइजेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। उनके काम की सराहना जब होती है तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। और आपने तो कमाल किया, ग्रेट कमाल आप लोगों का, और मैं कह सकता हूं जो लोग देख रहे हैं आज, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका प्यार है कि हमने ये कमाल किया है। बट एक्चुअल बात यह है कि जितने भी आर्टिस्ट है, कलाकार है और कस्बी है जो फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, उनका काम तो बहुत अच्छा है, काम करते हैं, लेकिन उनका काम कहीं सराहा नहीं जाता। तो उनकी सराहने होना कहीं ना कहीं हमें लगा कि जरूरत है। तो आज एक कलाकार को उसका काम का पैसा मिलता है, उसका शूट खत्म होता है, फिल्म रिलीज हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब उसके काम को ऐसे किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर एप्रिशिएट किया जाता है तो वो अपने आप में एक कलाकार के लिए अचीवमेंट है। और हमने सोचा कि जो सबसे अच्छा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि गुजराती फिल्म कलाकार में कोई बुरा नहीं है, हम जानते हैं सब अच्छे होते हैं तभी कलाकार होते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ है उसे हम अवार्ड देते हैं। तो वो अवार्ड से उनका मोटिवेशन बढ़ता है, उनको भी लगता है कि इस साल मुझे अवार्ड नहीं मिलना। आज मैं आपको बताऊं कि 2016 के बाद अब 2020 का हमारा जो 5th एडिशन है, मैं जानता हूं आज बहुत सारी फिल्में इसलिए बन रही है कि जीफा में एंट्री मिलनी चाहिए। तो ये एक नाम, एक रिकॉग्निशन, एक बेंचमार्क हमने किया है कि हमें ऐसी आइकॉनिक फिल्म्स चाहिए जो कहीं ना कहीं कुछ कर दिखाए। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतर जी की शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है जब हम कुछ भी करते हैं। सो हाउ वाज इट लाइक, हाउ वाज योर स्टार्ट? आपके लिए इजी था ये क्रिएट करना प्लेटफॉर्म, या ऑफ कोर्स दिखने में तो लगता है वाओ इट इज ग्रेट, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत मेहनत होती है। तो मैं वो भी चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। बिल्कुल, कोई चीज मैंने आपको बताया उस हिसाब से कभी इजी नहीं होती है। आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जिस इंडस्ट्रीज के साथ, मेरी बात करूं पर्सनली तो मेरा कोई पर्सनली कोई नाता नहीं है, तो इट वाज टफ क्वेश्चंस टू क्रिएट सच प्लेटफॉर्म फॉर द इंडस्ट्री। लेकिन अरविंद मेरे साथ था और मैंने और अरविंद ने हर एक चीज को बारीकाई से देख के हर एक चीज को आइडेंटिफाई किया,
कुछ इसमें सिस्टम की बात आती है, कुछ मैनेजमेंट की बात आती है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है। तो मुझे पता था कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, उसका सिस्टम कैसे होना चाहिए। तो जो प्रोसेसेस है वो हमने अच्छी तरह से डेवलप की, प्रोसेसेस अच्छी तरह से एस्टेब्लिश की। मैंने इंश्योर किया प्रोसेस के हिसाब से काम चले, और अरविंद ने इंश्योर किया कि उस प्रोसेस में जहां पे आर्टिज्म की जरूरत है वहां पे वो अच्छे से अच्छा आर्टिज्म इनपुट दे। तो उसी तरह से हमने ज्यूरी आइडेंटिफाई की। मैं आपको बताऊं, जीफा की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अपने आप में एक यूनिक है। जीफा का नॉमिनेशन मिलना वो बहुत बड़ी बात होती है। साल की अगर 60-70 फिल्में बनती है तो 60-70 फिल्मों में से 6 फिल्म नॉमिनेशन में आती है और उसमें से एक फिल्म एज अ बेस्ट फिल्म डिफाइन होती है। तो 60 फिल्मों को तो हम नॉमिनेशन दे नहीं सकते, हमें तो किसी 6 फिल्म को चुनना है। तो हमारा जो टेन्योर है, हमने टेन्योर भी कुछ अलग तरीके से गुजराती टर्म्स के हिसाब से डिसाइड किया है। हमने दीपावली से दीपावली रखा है, मतलब दीपावली अप्रोक्सीमेटली नवंबर के आसपास होती है, तो हमने 1 नवंबर से लेके 30 अक्टूबर ये हमारा टेन्योर है। तो इस साल भी 2020 है, तो जो 30 अक्टूबर है वहां तक जितनी फिल्में रिलीज होगी थिएटर में वो सारी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेगी, और 2019 में 1 नवंबर के बाद जो रिलीज हुई है वो सारी पार्टिसिपेट कर सकेगी। तो ये एक उसका पूरा टेन्योर है। उसके हिसाब से जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें ऑनलाइन इसका फॉर्म भरना होता है, वो भी हमने डिजिटलाइजेशन पूरा कर दिया है। हमारा gifa.co.in जो वेबसाइट है वहीं से डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद उसका सीडी डीवीडी हमारे पास सोर्स आता है, और पूरी ज्यूरी बैठ के फर्स्ट उसको पूरा फिल्म को देखती है, और अलग अलग कैटेगरी में उसका मार्किंग होता है ABCD वाइज। और फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में दोबारा वो ज्यूरी के पास जाता है, जिसमें से डिफाइन होता है कि ये 60-70 में से कौन सी मूवीज कौन सी कैटेगरीज में आगे फॉरवर्ड होगी, A कैटेगरी या B कैटेगरी में। और थर्ड राउंड में उसमें से डिफाइन होता है नॉमिनेशन के कौन कौन सी फिल्म और कौन कौन से कलाकार इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं। और लास्ट राउंड में फाइनल होता है कि इस नॉमिनेटेड कैटेगरीज में कौन विनर होगा। तो ये अपने आप में एक लंबा प्रोसेस है, और लोगों ने इस प्रोसेस को एक्सेप्ट किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और आज ये सम्मान की बात है कि किसी को भी नॉमिनेशन मिला है, वो उसका पहला जवाब ये रहता है कि अवार्ड मिले ना मिले, एक बार नॉमिनेशन मिला तो हम बेस्ट तो है। अब सबसे बेस्ट बनने के लिए अवार्ड की बात है वो सेकेंडरी होती है। Absolutely. जो आपका ज्यूरी है वो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि who will do the selections? वो आप कैसे बनाते हैं? On what behalf you have decided your panel? ज्यूरी में हमारे पास करीबन आप मानेंगे 15 लोग हैं, जिसमें फिल्मों से जुड़े हुए हैं, जिसमें कोई ज्यूरी हमारे ऐसे है जो हमारे नेशनल अवार्ड जो होते हैं हिंदुस्तान सरकार के उसमें भी जुड़े हुए हैं। ऐसे ज्यूरी है जो ऑस्कार के कहीं ना कहीं कमिटी में कनेक्टेड है, या और दूसरे फिल्म फेस्टिवल में भी कनेक्टेड है। बहुत अच्छे राइटर्स, बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर, ऐसे सारे अलग अलग किस्म के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग हैं जिनका 20-25 साल का तजुर्बा है एज अ डायरेक्टर, तो वो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज अ ज्यूरी। तो वो अपना अभिप्राय देते हैं डायरेक्शन के मामले में, जो सिंगर है या म्यूजिक कंपोजर है वो सिंगिंग के मामले में देते हैं। Fantastic. So it is all very well organized and you have planned it in a Very well. manner. Very good. So And very important, I'm sorry to disturb you here and stopping you here. आपकी बातें पूछ रही हूँ, it's very nice. आप जितना बताएंगे हमारे viewers को उतना ही अच्छा आएगा. I really want you to say everything. Yeah. मैंने आपको रोका, इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये जो पूरी पैनल है, ये जो पूरी ज्यूरी है और ये जो पूरी प्रोसेस है, इसमें सबसे बड़ी बात है मैं या अरविंद, हम दो डायरेक्टर है और हम दोनों भी इसमें अलाउड नहीं है। वो उनका खुद का डिसीजन होता है, वो जो भी लिखेंगे, जो भी बताएंगे, वो हम सिर्फ मान के चलते हैं कि हाँ आपने जो कहा वो सर आंखों पे। सो दैट इज दैट डिसीजन व्हाट दैट। आपने जवाब दे दिया है। यही पूछने वाली थी, क्या आप और अरविंद जी भी पैनल में है या नहीं है? नहीं, हम लोग नहीं रहते हैं, हम बैठते हैं, बट वी आर जस्ट देयर एज अ टाइपिंग मैनेजर। वो जो बताते हैं वो टाइप करके पूरा डिसीजन करके कंप्लीट करके अनाउंसमेंट के लिए रेडी करते हैं, क्योंकि ये नॉमिनेशन भी ज्यूरी ही अनाउंस करती है। बहुत बढ़िया। सो इट्स वेरी फेयर और जो डिजर्विंग है उसे ही मिलता है। देखिए तभी एक ट्रस्ट डेवलप करा पाए आप लोगों का आपके प्रति। 2000 और आज इसका ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। इट्स ग्रेट।
बिल्कुल। तो आपकी कैटेगरी मैं आपको आपने क्या क्या रखी, मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगी आपसे। कैटेगरीज जो फिल्म के रिलेटेड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आती है वो सारी कैटेगरीज हमने रखी है। कैटेगरीज के बारे में मैं आपको बताऊं उसके पहले एक बात आपको बता दूं। जीफा का ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बॉलीवुड की बात करें तो बहुत से कलाकार हैं जिसको आप जानते हैं, पर्सनली नाम से जानते हैं या चेहरे से जानते हैं, तो आपको पता चलता है कि ओके इसकी बात हो रही है। गुजराती कलाकार में अभी तक इतना फेमस कलाकार नहीं होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम या वन टाइम काम किया है। हमारे जूरी में ऐसी हालत हुई है कि हमें कैरेक्टर के नाम से वो आर्टिस्ट को पहचानना पड़ता है कि वो आर्टिस्ट कौन है, और फिर उन तक हम वो मैसेज पहुंचाते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ है, आप नॉमिनेट हुए हो। आज रेवा करके एक फिल्म गुजराती बनी थी, रेवा जो नेशनल अवार्ड विनर है लास्ट ईयर की, जो जीफा की भी बेस्ट फिल्म है। उस फिल्म की जो सिंगर है आरोही मराठी है, उसने गुजराती गाना गाया था। अब हमको पता नहीं था वो आरोही मात्रे कौन है, कहाँ की है, क्या है, लेकिन उसने जो गाना गाया था वो सिलेक्ट हुआ। शी वॉज नॉमिनेटेड एंड शी वॉज विनर। तो वो जो सिलेक्ट हुआ है उसी के लिए जाएगा। हम उनके डायरेक्टर को बताते हैं कि आप इनको इन्फॉर्म कीजिए कि ये नॉमिनेटेड है। और जीफा में जो विनर है वो उनको पता नहीं होता जब तक वो अनाउंसमेंट नहीं होता है कि वो विनर है। वी जस्ट डिक्लेयर अ नॉमिनेशन, नथिंग एल्स। वाओ, ग्रेट, दैट्स रियली वेरी नाइस टू नो। और आप जिस हिसाब से इसे प्लान कर रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत ही अच्छे ढंग से आप कर रहे हैं, एंड आई नो कि ये बहुत ऊपर जाएगा। इट विल बी अमेजिंग। इट्स सो नाइस टू नो। टच वुड। ग्रेट। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे शो पे आए और हमारे साथ ये सब शेयर कर रहे हैं। एंड बहुत से लोग हैं जो अपना नाम बनाना चाहते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन उनके लिए ये जो आप जिस ढंग से बता रहे हैं, उनका ट्रस्ट और बनेगा कि हाँ ऑफ कोर्स हमें भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती, वी कैन बी द विनर आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने जिस ढंग से पैनल क्रिएट किया, मुझे वो भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी आपने जूरी बनाई हुई है और वही सिलेक्ट करते हैं। एंड आपको जो चीज़ पता आप उसमें ही इंटरफेयर करते हैं, आप दूसरी चीज़ें दूसरों पे छोड़ देते हैं। दैट ओके फाइन, वी एक्सेप्ट योर डिसीजन। इट्स फैंटास्टिक। हाँ बिल्कुल। देखिए जो नॉन टेक्निकल है उस बातों में हम कहीं पे भी बीच में जा सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। जो टेक्निकल बात है वो जिसका जो विषय है, आज मैं संगीत के बारे में बोल के क्या करूंगा, मुझे पता ही नहीं है संगीत का कुछ, जो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। डायरेक्शन के बारे में अगर मैंने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मैं बैठ के सुन सकता हूँ। तो मुझे सबके व्यूज पता होते हैं। सबके व्यूज, अगर आप समझिए इसमें ये हालत होती है कि 6 नॉमिनेशन में 6 लोगों के नाम आए हैं। से फॉर एग्जांपल एक सपोर्टिंग एक्टर की बात करते हैं, बाकी सब बड़ा बात तो छोड़ देते हैं। एक सपोर्टिंग एक्टर, तो उसमें जो 6 नाम है उसमें 2 लोग बोलते हैं मुझे ये नाम सही लग रहा है, कोई बोलता है मुझे ये नाम सही लग रहा है, कोई बोलता है मुझे वो नाम सही लग रहा है। तो वहां पे हम बीच में आते हैं कि किसको क्या सही लग रहा है, वो क्यों लग रहा है, वो रीजन हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो रीजन डिस्कस होता है और फिर उससे वो डिसीजन आता है। जो भी एक सिलेक्ट होता है वो बाकी सबको कन्विंस करता है कि इसको हम अवार्ड दे रहे हैं बिकॉज दिस। ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमें वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। कई बार टाई भी होती है। जीफा में टाई होना बहुत नॉमिनल है, क्योंकि बहुत से लोगों का डिमांड होता है कि नहीं ये स्ट्रांग है, कोई बोलता है ये स्ट्रांग है, और दोनों ही स्ट्रांग रहता है, डिसीजन दोनों के बाहर नहीं जाता है, तो फिर वो दोनों को अवार्ड देके हमें टाई करना पड़ता है। बहुत ही प्लान्ड और बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसे कर रहे हैं। आई एम रियली ग्लैड एंड इट्स गोइंग ग्रेट। इस साल तो आपका कनाडा में होने वाला था, सो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दैट? हाँ, एक्चुअली हमने जो 3-4 साल खत्म किए तो गुजराती आइकॉनिक फिल्म अवार्ड के बाद नाउ वी आर प्लानिंग टू एक्सप्लोर इट इन अ मोर वे, इन अ ग्लोबल वे, कि गुजराती आइकॉनिक फिल्म फेस्टिवल हो, जो फिल्म गुजराती फिल्म एग्जीबिशन है वो एग्जिबिट हो वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो हमने कनाडा में फर्स्ट में गुजरात डे आता है तभी प्लान किया था टोरंटो में। फ्रेंड्स ऑफ गुजरात कनाडा है उनके साथ, कि गुजराती आइकॉनिक फिल्म फेस्टिवल वहां पे हम 3 दिन का करेंगे। उस 3 दिन में हम 12 से ज्यादा गुजराती सिलेक्टेड फिल्म्स वहां दिखाएंगे और एक छोटा सा अवार्ड फंक्शन करके उसमें से जो बेस्ट है उनको वहां पे अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन आपको पता है कि 22 मार्च के बाद, मतलब फरवरी के बाद, तो पूरी दुनिया आज जिस हाल में है अभी तक कोई उठ नहीं पाया है और हम भी नहीं उठ पा रहे हैं। ऐसी हालत सबकी है। So there is no choice now.
अभी पोस्टपोन किया है, वी डोंट नो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, कब डेट आएगा और कब सब नॉर्मल होगा और रूटीन आ पाएगा। एब्सोल्युटली राइट। तो आपका मैं देखती हूँ हेतल जी, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो आप एक्टिंग में क्यों नहीं आया? आप भी तो एक्टर बन सकते हैं। नहीं, एक्टर आपकी बात सही है, एक्टर तो आप भी बन सकती है और एक्टर तो मैं भी बन सकता हूँ। एक्टर बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो एक फील्ड होता है, हर एक का एक पैशन होता है। आपका पैशन है कि आप एंकर बने हो, तो आपको उस एंकरिंग करने में बहुत रुचि है, आपको उस काम को करने में बहुत मजा आता है। तो मुझे जिस दिन ऐसा लगेगा कि मुझे एक्टिंग करने में बहुत मजा आता है और मुझे अपने आप को वहां पे निखारना चाहिए, तो मैं पक्का कोशिश करूंगा। मैंने अभी एक फिल्म में छोटा सा एक किरदार भी किया था, 1 मिनट का, बॉलीवुड की फिल्म में भी किया और गुजराती फिल्म में भी किया था, लेकिन वो उस वक्त की जरूरत थी और मैं अवेलेबल था तो मैंने कर लिया था। इट वॉज नॉट एज अ पैशन, इट वॉज नॉट एज अ जॉब और इट वॉज नॉट एज अ कैरियर। मैं बीइंग एक्टर एज अ कैरियर नहीं बनाना चाहता हूं, मैं ना एक्टिंग करना चाहता हूं, मुझे ना एक्टिंग आती है, मैंने ना एक्टिंग कभी सीखी है। मैंने सीखा है मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रोसेस को मैनेज कैसे करना है, ये मुझे पता है और ये मुझे पक्का यकीन है कि वो मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ। आपके मैंने जीफा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं देखा है, उसके बारे में भी जानना चाहूंगा। हाँ, हाँ, आपने मुझे पूछा था और ये बात बताना रह गया था, अभी अधूरी रही है हमारी बात। कैटेगरीज क्या क्या है? तो नॉन टेक्निकल तो सारी कैटेगरी, आप एडिटर की बात करेंगे, सिनेमेटोग्राफर की बात करेंगे, या आप आर्ट डायरेक्टर की बात करेंगे, ये सारी कैटेगरीज है। म्यूजिक की हमारी 4 से 5 अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें मेल सिंगर आता है, फीमेल सिंगर आता है, लिरिसिस्ट आता है, म्यूजिक कंपोजर आता है। तो ये हमारा पूरा म्यूजिक का एक पोर्शन है। कॉमिक के लिए हमने कॉमेडी एक्टर रखा है, नेगेटिव रोल के लिए नेगेटिव एक्टर रखा है, सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्ट्रेस, और हमारी 4 मेन कैटेगरी होती है: बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। इसके अलावा हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट इसलिए नहीं रखा है कि हम जानते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो भी गुजराती फिल्म इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो जब तक जिंदा है तब तक अच्छे से अच्छा काम करते रहे। आज आप नरेश भाई कनोडिया की बात करेंगे, आज उनकी उम्र मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, 60-70 साल, 80 साल के, 70 साल के ऊपर है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन अभी भी वो उसी जोश के साथ फिल्म में आपको दिखेंगे। तो एज अ जीफा हम नहीं चाहते कि हम किसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देके ये बताए कि आपने लाइफ को जो अचीव करना था वो कर लिया है। नाउ प्लीज डोंट वर्क, वी डोंट वांट टू अनाउंस दैट एंड वी डोंट वांट टू एस्टैब्लिश दैट। वी वांट टू एस्टैब्लिश सच पर्सन एज अ गोल्डन पीपल ऑफ गुजरात और गुजराती कल्चर और गुजराती लैंग्वेज और गुजराती सिनेमा के उन लोगों ने गुजरात और गुजराती सिनेमा के लिए गोल्डन काम किया है और आगे भी करते रहे। ऐसी शुभकामना के साथ हम उनको गोल्डन अवार्ड देते हैं। लास्ट ईयर जो हमारा हुआ था जीफा 2019, उसमें आनंद जी भाई शाह थे, कल्याण जी आनंद जी में जो आनंद जी भाई है म्यूजिक कंपोजर, वो आए थे और उनको हमने गोल्डन अवार्ड दिया था। अब वो म्यूजिक कंपोज ज्यादा नहीं करते, कम करते, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम आपको गोल्डन पीपल ऑफ द गुजरात करके बताएं, नॉट द लाइफ टाइम अचीवमेंट। लाइफ टाइम तो बहुत से लोगों से उनको मिल चुका होगा, लेकिन वो गुजरात के गोल्डन पीपल है, ऐसा जीफा ही कहता है। क्या बात है, आपने तो ये प्रूव कर दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर एंड यू विल ऑलवेज यंग एंड कीप ऑन वर्किंग। दैट्स व्हाट योर मैसेज इज। इज लवली एंड एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So, Hetal ji, I would like you to share some incidents, any incidents of yours with our viewers during the जीफा show, या कुछ भी आप हमारे viewers के साथ share करना चाहेंगे, which is a memory with you. जीफा का जो यूनिक है, यूएसपी जो आप बोल सकते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, लेकिन वो यूएसपी जीफा का मैं आपको बताऊं तो जीफा में परफॉर्मेंसेस जो है वो हमेशा, जो आपने भी यहाँ पे बीच में एक रील भी दिखाया था उसमें देखा होगा कि वो एक से एक बाखूबी निखारे हुए होते हैं। उसका स्क्रिप्ट, आपका जो बॉलीवुड के दूसरे आईफा या अवार्ड फिल्म फेयर होते हैं उस तरह से अलग पूरा स्क्रिप्ट लिखा जाता है और जीफा टेलीकास्ट भी होता है। मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात, जो लास्ट टाइम हमारा एक इंसिडेंट हुआ था, भूमि त्रिवेदी जो बॉलीवुड सिंगर है, गुजराती है, वो गुजराती गाने भी गाती है, अच्छी दोस्त है, नॉमिनेटेड भी थी। उससे बात भी हमारी 3 साल से चल रही थी कि वो आएगी, फ्री होगी तो कुछ पार्टिसिपेट करेगी और कुछ परफॉर्म भी करेगी। तो
भूमि ने बोला कि हाँ मैं परफॉर्म करूंगी, और कुछ डिस्कस हुआ था मेरा और उसके साथ तो कि कौन सा गाना गाना है, क्या करना है, मैं माइनस ट्रैक पे गाऊंगी, म्यूजिक बैंड वहां होता नहीं है, ये वो हम डिस्कस कर रहे थे। और अरविंद इज टेकिंग केयर ऑफ एंटायर परफॉर्मेंसेस एंड इट वाज 100% हिज आइडिया। उसका ये खतरनाक मतलब आर्टिस्टिक माइंड है, Yeah. जिसमें उसने बोला कि भूमि गाना नहीं गाएगी, इस बार भूमि से हम वहां पे डांस कराएंगे, परफॉर्म कराएंगे। Wow. और उसका जो भूमि का गाना है वाग्यो रे ढोल, विच वाज फ्रॉम फिल्म ऑफ हेल्लारो, विच वाज अ नेशनल अवार्ड विनर फिल्म, लास्ट ईयर नेशनल अवार्ड विनर फिल्म हेल्लारो, जिसका उसका गाना है, और उस गाने पे, हेल्लारो के उस गाने पे भूमि ने वहां पे डांस परफॉर्म किया है। I know, it's lovely. दैट वाज द यूनिक इंसिडेंट कि आपने भूमि को गाना गाते हुए देखा होगा, बट जीफा वाज द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर शी हैज परफॉर्म एज अ डांस। Yes, absolutely right. बिल्कुल ठीक कहा हेतल जी आपने। एंड हेतल जी, मुझे ऐसा लगता है कि you like uniqueness. That's what you. हाँ, इट शुड बी ऑलवेज। सी, मुझे इतना पता चलता है कि जो लोग हमारे व्यूअर्स है, जो लोग वहां पे अटेंड करने आ रहे हैं, उनको कुछ यूनिक होगा तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा मजा आएगा। Of- और जीफा हमेशा लाइव होता है। जीफा में ऐसा नहीं है कि जिसको अवार्ड मिला वो आया, अवार्ड लिया, चुपचाप चला गया। वो स्कूल के बच्चों को अवार्ड बांटते हैं ना, ऐसा अवार्ड हम नहीं करते। absolutely. हमारा अवार्ड बहुत लाइव होता है और लोग उसमें कनेक्टेड होते हैं, एंड वी ऑलवेज वांट कि पीपल शुड कनेक्टेड विद द अवार्ड। तो उसमें आप जीफा होता है, उसके पहले इसका पब्लिक पॉल होता है, हमारी वेबसाइट और फेसबुक सोशल मीडिया पे हम इसमें वोटिंग करवाते हैं, Oh wow. तो लोगों का कनेक्शन इसमें बहुत बढ़ता है। फैंटास्टिक। आपने बहुत ही वो, मुझे भी लगता है कि जब चीजें प्लानिंग से हो, प्रॉपर वे में हो, तो उनका रिजल्ट अमेजिंग ही आता है। इट्स 100%, दैट्स व्हाट इट इज। एब्सोल्युटली। सो अभी का जो आप कह रहे हैं कि आप 2020 के अवार्ड्स का, हम इस साल क्या करने वाले हैं? इस साल का 2020, देखिए जैसे आपने बताया कि 2020 का कुछ क्या करेंगे, लेकिन मुझे और आपको दोनों को पता है कि मार्च के बाद की जो पोजीशन है, अभी ये जून चल रहा है और हमें पता नहीं है कि आगे क्या होगा। अभी कोई फिल्म रिलीज होने का कोई गुंजाइश नहीं है, जी, थिएटर्स बंद है। आप किस तरह से प्लान करेंगे, क्योंकि रिलीजेस भी कम है, और आर यू प्लानिंग, क्या होगा लाइक? इसमें मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट अभी दे देता हूं। जीफा होगा, ये अंडरलाइन के साथ है। गुजराती आइकॉनिक फिल्म अवार्ड 2020 होगा, मतलब होगा। हमारा टेन्योर 1 नवंबर 2019 से शुरू होता है और 22 मार्च 2020 तक जितनी फिल्में रिलीज हुई है वो एक बैंक है हमारे पास। ज्यादा नहीं है, कम है, लेकिन है। और 30 अक्टूबर तक अगर ये लॉकडाउन खुल जाता है पूरी तरह से और फिल्में रिलीज होती है, तो जितनी और फिल्में होगी रिलीज, वो इसमें जुड़ जाएगी। अगर हमें लगता है सितंबर अक्टूबर तक कि ये होने की गुंजाइश है, तो ऑफ कोर्स ये उसी तरह से बड़े लेवल में ग्राउंड में होगा, भीड़ भाड़ के साथ होगा, पब्लिक गैदरिंग होगा। लेकिन अगर पब्लिक गैदरिंग की परमिशन हमें दिसंबर तक भी नहीं मिलती है किसी कारण से, खुदा न खास्ता, तो हम ये अवार्ड शो करेंगे। हो सकता है हम उसको ओटीटी किसी प्लेटफॉर्म पे करें, या सोशल मीडिया पे करें, या यूट्यूब पे करें, डिजिटल करें, लेकिन करेंगे, वो बात पक्की है। जीफा होगा। तो आप जीफा को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं? जीफा जो 5 साल पहले मैंने जहां देखा था, आज वहां से थोड़ा आगे है। मैंने सोचा था कि जीफा गुजरात का एक सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन होगा और जीफा को कहीं बाहर भी हम लेके जाएंगे। मुझे पता नहीं था, गुजरात के बाहर का प्लान था पहले, लेकिन आज 2016 से 2020 आते आते हमने ये प्लान कर लिया कि जीफा के साथ साथ हम गुजराती आइकॉनिक फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, जो इस साल हमारा नहीं हुआ, लेकिन वो ऑलरेडी प्लान है। हो सकता है अगले साल हो कनाडा में, और डेफिनेटली यूएस में भी होगा, न्यू जर्सी या न्यूयॉर्क में भी हम प्लान कर सकते हैं। बट मैं देखता हूं कि 5 साल के बाद जीफा अलग अलग 8 से 10 कंट्रीज में फिल्म फेस्टिवल के तौर पे गुजराती फिल्म को वर्ल्ड वाइड एग्जिबिट भी करेगा, और जीफा गुजरात में भी होगा। और ये अपने आप में एक अलग ब्रांड होगा कि जो गुजराती भाषा, गुजराती कल्चर और गुजराती सिनेमा को पूरी दुनिया में पहुंचाएगा। फैंटास्टिक। केतन जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के, एंड आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री वाले जो लोग होते हैं, बहुत ही उनका मेजर योगदान है आम लोगों की जिंदगियों में खुशियां बांटने का, और आप उनकी खुशियां प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यू आर लाइक
अमेजिंग पर्सन फॉर ऑल ऑफ दैट। और इन्हें कितना अच्छा लगता होगा कि आपने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया और आप उनके काम को सराहते हैं। इट्स ग्रेट। वो एक दो लाइन थी जो मैंने सुनी, शायद आपने भी कहीं सुनी होगी, हिंदी में एक दो लाइन थोड़े चुटकुले के जैसी लाइन है कि चाहे चांद पे पहुंचने वाली पहली जाति कोई भी हो, चाहे चांद में पहुंचने वाली पहली जाति कोई भी हो, वहां पहली दुकान तो गुजराती की होगी। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। तो हम चाहते हैं कि चाहे कहीं पे कोई भी बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, बट दुनिया के हर एक शहर में, हर एक कोने में जहां जहां गुजराती बसता है, वहां पे गुजराती फिल्म पहुंचे। जरूर पहुंचेगी। और मेरा खुद की भी सोच है कि बहुत मेहनती होते हैं जो गुजराती होते हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी कमिटेड। एब्सोल्युटली। That's a plus point of Gujaratis and I just admire and I love it. It's very nice. और हेतल जी, आपने जो काम किया है उसके लिए तो मैं सब लोगों की तरफ से आज आपका धन्यवाद फिर से बोलना चाहूंगी कि ये आप एक बात आपको गुजराती के लिए और ऐड कर देनी है, जो आपके लिए मन में है, वो बात बहुत सही है, बहुत मेहनतू होते हैं, बहुत ये भी है, लेकिन और एक बात गुजराती के लिए जो मैं आपको बताता हूँ, गुजराती एक बार जो ठान लेते हैं ना, वो जब तक पूरा नहीं होता है ना, उसको छोड़ते नहीं। ये तो मैं मानती हूँ। हाँ, ये गुजराती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। Amazing, and they are role model for so many, of course, yes. So, Absolutely. thank you so much. आपसे बात करके बहुत मजा आया और कुछ मैसेज में चाहूंगी आप गुजराती में अगर देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। જે લોકો મને જોઈ રહ્યા છે, હું એને ફક્ત એટલું જ કહીશ કે જીવનમાં એન્ટરટેનમેન્ટ દરેક જગ્યાએ છે, આનંદ મેળવવાની ઘણી બધી જગ્યાઓ છે, અને ગુજરાતી ભાષાની જ્યારે જ્યારે વાત કરીએ ને ત્યારે ગુજરાતી નાટકની વાત કરું કે ગુજરાતી સંગીતની વાત કરું, એ વિશ્વના ખૂણે ખૂણા સુધી પહોંચી જ ગયું છે। ફિલ્મો પણ હવે ખૂબ સુંદર બને છે। આજે જ્યારે હેલ્લારો જેવી ફિલ્મ, જેણે હિન્દુસ્તાન અને બોલિવૂડની બધી જ ફિલ્મોમાં સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ ગુજરાતી ફિલ્મ તરીકે એક એવોર્ડ લીધો, તો આવી સારી સારી બનતી ગુજરાતી ફિલ્મોને દરેકે દરેક પ્રકારનું દેશ અને વિદેશનું ગુજરાતી અને નોન ગુજરાતી ઓડિયન્સ મળે, તો એ ગુજરાતી ભાષાનું સન્માન છે, ગુજરાતી કલ્ચરનું સન્માન છે। તમે દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં રહેતા હોય, અમેરિકામાં, ન્યુયોર્કમાં રહેતા હોય કે ન્યૂ જર્સીમાં રહેતા હોય, ક્યાંક ને ક્યાંક તમારા ખૂણામાં, તમારા દિલમાં આ ગુજરાતી માતૃત્વ, ગુજરાતી ભાષા માટેનો પ્રેમ છુપાયેલો છે। આ પ્રેમને થોડોક વધારે મોટો કરી અને ગુજરાતી ફિલ્મોને પ્રેમ આપો, ગુજરાતી ફિલ્મો સુધી પહોંચો, તો આપણું કલ્ચર, આપણા જે સંસ્કાર છે, એ આપણી આવનારી ભવિષ્ય પેઢી સુધી આપણે પહોંચાડી શકીશું। અને થેન્ક યુ, આજે મને બધાએ સાંભળ્યું એના માટે। बहुत अच्छा बोला आपने हेतल जी, एंड थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ रश्मि बेदी। हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट देखते हैं माय ड्रीम टीवी यूएसए, और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ड्रीम टीवी यूएसए।